people say that I exaggerate, but it is reality. I was studying 18 hours a day because it was a situation where I needed to prove something, that okay, I'll write something and someday I'll get selected. One aspect is jungle survival. That is a separate kind of training where you're left in the jungle for 7 days. And though certainly it is guided, but it is you're left there. They risk their own lives and accidentally, not knowingly, despite it is being written everywhere, they take something कि ये उठा लेते हैं, वो उठा लेते हैं, कोई हॉर्न दिख जाएगा, वो उठा लेते हैं. उनका क्योंकि हम लाइवलीहुड एक तरीके से छीन रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर नॉट अलाउिंग देम टू कलेक्ट वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, we are not allowing them to take things out from the forest because it is as per the law, but it was their only means of livelihood. Chambal is sprawling with wildlife. Majority of the reason क्योंकि वो जो एक टाइम था जिसमें वो डाकू वाला फेज था चंबल का, जब हम सुनते हैं चंबल के डाकू एंड एवरीथिंग, नाउ दैट फेज हैज़ गॉन. बट वो जगह इतने टाइम से अकेली खाली रह गई कि वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को, आपको हर तरह की वाइल्ड लाइफ, अगर आप रात में जाते हैं सब कुछ दिखता है वहाँ पे अभी भी. Today with us we have Arushi Mishra, a 2020 batch Indian Forest Services officer who is currently serving as the District Forest Officer of the Unnao and Chambal districts of Uttar Pradesh. In this episode of Sushaasan, we will be discussing about the roles and responsibilities of the forest officers, the training methodology adopted to train the forest officers, the wildlife conservation and anti-poaching techniques adopted by the forest department, of which these officers are an integral part of, and much more. Do watch out for this episode of Sushaasan. A very warm welcome, Arushi ji, to this episode of Sushaasan. It's indeed a pleasure having you with us today. And what I'm excited about to discuss with you, जो बहुत ज़्यादा मेरे को interesting लग रहा है for myself as well as for our viewers, is to know more about the Indian Forest Services. लोगों को IAS, IPS के बारे में दिखता रहता है public domain में बहुत ज़्यादा, so तभी लोगों को पता रहता है. But Forest Services, is something that we want to discuss. Also, some of the key interventions of which you have been a part of in your last few years of services in the Indian Forest Services, वो भी discuss करेंगे. Right. Thank you so much for having me here. So, upfront, would want to know what was the motivation to write the civil services at the first place, because I think आपने दोनों exam लिखे हैं, the civil services as well as forest services. So, अगर थोड़ा बता सके, take us down the memory lane. Right. I guess it somehow lies in the mid of this idea that I come from UP. I belong to UP, Raebareli. So in general, जब a person is born in UP, so एक mindset होता है कि government exams are a must to given. So that was the first thing कि उसके प्रति एक idea develop होता है. But certainly when I was doing my graduation in IIT Roorkee, there was also a culture of giving the civil services examination, because in 2010 something, the topper was from our college itself. So there was a environment, there was a passion, there was a euphoria created about it. Everybody is giving about the examination. And then when I started preparing, certainly in the first stage I was not knowing about the forest service, because awareness with respect to this service is very low, and the reason is just because till 2013 the examination was conducted very separately. It was not with the civil services examination, so very specific stream of people with very specific backgrounds were only able to come, and they were contributing in the service. But then I came to know about it, I filled the exam, and then I started giving the examination. While reading about it, I realized that it is about something that is very close to us. We see it every day. However, I do not know how it is done. So that was something I got interested about it during the process of it, I would certainly say. तो स्टार्ट कब किया था प्रिपेयर करना आपने? स्टार्ट मैंने प्रिपेयर किया था करना बहुत पहले, 2014, व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय कॉलेज. जी ओके. बट द सिलेक्शन टुक अ लॉट ऑफ टाइम, तो दैट्स व्हाई माय बैच इज 2020 इन द सर्विसेज इज. गॉट इट. सो जर्नी में जैसे आपने बताया कि आपने दोनों एग्जाम्स दिए, एंड आपने क्लियर भी किया था द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड फॉरेस्ट सर्विसेज भी हो गया था पैरेलली. तो हाउ डिड यू मेक अ चॉइस बिटवीन द टू? The choice was I just because back at that time in 2019, if I go, तब उस समय I had 3 services in my hand. I had forest service, I had revenue service, and the state service में DSP I got selected as. So
I had all these three services and I was confused what to do, because there was more recognition attached to the police and more recognition certainly to the revenue service. But somehow I was not able to find myself related to the idea, just because of the fact that it was not clicking. It was just my instinct that I felt that amongst the three service, maybe I could contribute myself better, because I always wanted to be a part of an administrative setup. So, and this forest service particularly, when I thought about it for like I guess a week or something, I gave it a thought and I wrote all the pros and cons of everything, because till from 2014 till 2019 I never had a choice what to do, and in 2019 I have a choice what to do. So when I wrote about it, I realized that it lies at the congruence of very important facts that as a forest service officer, I would get to do the administrative role in my setup. I would be able to use my technical expertise of my background as an engineer also in the service, because it is a technical service. And also I could contribute in something that interests me temperamentally, that the forest and wildlife. It was temperamentally suitable as well. So I guess the congruence of all these things made that decision. Understood, right? So what is, would be your advice? आपकी advice क्या रहेगी for any aspirant who is looking towards both of these examination parallelly? Forest भी है और civil services exam भी है. Considering from the fact that अब तो एक जगह एक ही optional है in the civil service examination, and forest services still has two optionals. So आपने कैसे manage किया दोनों की preparation? Back when I got selected, I had very less time to prepare for the forest service, because I just prepared for civil services, and by that time in 2018, I was very sure that I write the mains and I do not get through. I was in the habit of writing every year mains, prelims ho jata tha, mains I used to write of civil services as well, forest service ka till now. Till 2018, the examination of civil services main, forest services mains used to fall between the prelims, that was common, and the civil services mains. तो बीच में आ जाएगा तो एग्जाम नहीं दे सकते, दो नए ऑप्शनल प्रिपेयर करके, तो कभी एग्जाम ही नहीं दे पाए. But then it was 2018 was the first time. I was very busy preparing for the civil services. I prepared for the civil services, and then there was 2.5 months remaining. 2.5 months remaining, I spent all those 2.5 months for the preparing of two optionals, that were forestry and geology, completely new but definite. They were the syllabus was definite, because in science you cannot create something. I'm not a scientist. I'm just supposed to learn what is written and implement and write in the right way. So that was the thing that helped me. But now that the awareness has grown and people are knowing about it, I see many people who are preparing, and my suggestion would be that if you are filling both the examinations form, you need to prepare at least 1 month for both the optionals. I certainly suggest that you do not prepare it to the extent that is required for the examination. Just get the hang out of it, just get an understanding out of it, what the optional is all about. And when you finish your civils examination, you have ample amount of time in which, if you sincerely dedicate your time and comprehensively make your notes, you're able to do it. कितने घंटे पढ़ती थी आप वो सब? मैं क्या बताऊँ, वो रियलिटी ऐसी थी कि वो डेस्परेशन का टाइम था, एंड कि कमिंग फ्रॉम, ऐसा होता है ना, यू कम फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज एंड देन यू थिंक एवरीथिंग इज अ केक वॉक फॉर यू. You'll go and you'll write something and people will appreciate it to the extent that is मतलब आपकी imagination से भी परे होता है, but that does not happen, and certainly it never happened with me. So it is because of this reason by that time I was reaching year 2018. People say that I exaggerate, but it is reality. I was studying 18 hours a day, because it was a situation where I needed to prove something, that okay, I'll write something and someday I'll get selected, whatever might be. It was not about any particular service. It was just about that, okay, you're alive, you're able to write something, you're able to do something. So it was 18 hours, but it was certainly not in the same. It started with 2-3 hours. Right. Just I'll come and go and I'll write and everything will be done. So having gone through the long journey of कभी prelims नहीं निकला, कभी mains नहीं निकला, कभी interview निकला, and so on and so forth, what would be your advice to the aspirants ki what should they do so that they are able to clear the exam at a timely fashion? Right. Because I experimented a lot on myself. I did this experiment on my brother, and that he succeeded in the second attempt. So now I can certainly say that I have succeeded in my experiment as well. And what main things I felt, I realized in my preparation in a very later stage, and I implemented in my brother's preparation in an earlier stage as well.
First is we need to do the proper research about what we are studying. It happens कि बच्चे मेरे जैसे सब बच्चे मैक्सिमम लोग क्या मार्केट में जो भी आ रहा है सब पढ़ लेते हैं. जो कोचिंग का मटेरियल या इंटरनेट में मटेरियल इतना इन्फिनिट है कि वो पढ़ते जाते हैं और उसका कोई लिमिट नहीं होता. और दे डू नॉट कंसाइज देयर आइडियाज़ की एक लिमिट में रखें जिसको रिविजन कर पाएँ. सेकेंडली व्हाट पीपल डू इज दे डू नॉट राइट टेस्ट पेपर्स, या अगर टेस्ट पेपर लिख भी देते हैं तो उसके सोल्यूशन नहीं पढ़ते. और अगर टेस्ट पेपर लिख भी देते हैं कभी ये नहीं देखते कि पीपल हु आर गेटिंग सेलेक्टेड वो कैसे लिख रहे हैं. वी थिंक कि व्हाट वी आर लर्निंग वी आर राइटिंग एंड वी जस्ट राइट एंड पता नहीं क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा. लेकिन जब आप औरों का देखोगे ना कि जिनका सिलेक्शन क्यों हुआ है तो उससे रियलाइजेशन होता है कि कैसे हो सकता है आपका. तो ये मेन जो 2 पिलर्स है ना कि आपका प्रॉपर रिसर्च होने चाहिए और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके चाहे वीडियोस से आप गाइडेंस लें, चाहे आप उनकी कॉपीज से उनके नोट्स से गाइडेंस लें, लेकिन ले ज़रूर. आई थिंक वेरी वैल्यूबल एडवाइस फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स कि कैसे वो लोग अप्रोच कर सकते हैं. आई थिंक इट इज़ वैलिड फॉर अदर एग्जामिनेशंस आल्सो, द सेम अप्रोच. Right, same approach, because there is a sea of content that is available. Correct. And people think कि बस इस कोचिंग में गए, इन्होंने जितना पढ़ा दिया इतना पढ़ेंगे तो हो जाएगा. And now in Rajendra Nagar, if you see Rajendra Nagar, Karol Bagh, Delhi में, it's a market. मतलब it's a fashion कि लक्ष्मीकांत लेके हाथ में चल रहे हैं, वो फैशन है. लेकिन उसमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके डिमेंशंस अभी उतना समझ ही नहीं पाते. और उसमें ये सोचते सोचते कि पढ़ना क्या है, इंक्रीमेंटल पढ़ाई करते करते ना कि जस्ट कि ये इस बार इतना कम पढ़ा था, इस बार थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे. इंक्रीमेंटल पढ़ाई करते करते वो जब 4-5 साल बीत जाते हैं पता नहीं चलता. जी. तो दैट्स माय एडवाइस कि डू नॉट वेस्ट दैट टाइम, रिसर्च प्रॉपर्ली. जी. आप क्या राजेंद्र नगर आके आपने भी पढ़ाई करी थी और या आपका? नहीं, मैंने भी आई वॉज द क्या पर्सन स्टडिंग इन राजेंद्र नगर ज़रूर से. तो मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी थी. तो मैंने इनिशियली आई टुक कोचिंग फ्रॉम वाजीराम एंड रवि. देन वो मल्टीपल कोचिंग्स की, इससे ये पढ़ लेंगे, उससे ये पढ़ लेंगे, बट नेवर द रिसर्च की क्यों पढ़ लेंगे या पढ़ना चाहिए भी कि नहीं चाहिए. बस ये कि अच्छा इन्होंने कहा यहाँ एथिक्स अच्छा लगता है, आई शुड गो एंड रीड एथिक्स. But you have to do a research of your own, because after graduation you're smart enough, and now the pattern is changing in that idea that every person who is writing the spoon-fed answers or performing in the similar way, they're not getting marks. So training is one of the most important aspect of any officer that is being selected, or any candidate that is selected. वो candidate से officer बनने की जो journey होती है वो officer trainee वाली, वो most important होती है. because आप academic mindset से आप change हो रहे होते हैं professional mindset में. It is a change where you change from a person कि ये आज हो जाएगा, ये कल हो जाएगा, to a person who is on no leave. You cannot go to some place with an unauthorized permission. आप स्टेशन नहीं छोड़ सकते, या आप ये नहीं कर सकते कि ये आज नहीं कल कर लेंगे. आपका वो जो एक डिसिप्लिन होता है वो इनग्रेन हो जाता है. तो ट्रेनिंग उसी के अलग अलग फॉर्मेट्स में वही चीज़ सिखाती है, बस वो सिखा रही होती है. तो इसका जो पहला पार्ट होता है दैट इज़ अ फाउंडेशन कोर्स. फाउंडेशन कोर्स इज ऑफ 3.5 months. इट इज़ डन एट लबासना. इट इज़ सिमिलर विद इट इज़ सेम विद ऑल द अदर सर्विसेज. वही जब अगस्त में जाते हैं उसी समय होता है. तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. वहाँ पे यू टेंड टू शेयर द रूम विद पीपल ऑफ डिफरेंट सर्विसेज, बिकॉज 2-seater रूम होता है. वहाँ पे आप रहते हैं. यू डेवलप अ गुड बॉन्डिंग रिलेशन as well as sensibility towards the other service. And bonding is very important, because when you develop the bonding, it is in the senior times you realize ki why that bonding was important, because understanding how the other legs of the government work. So it is very important, and in that time you develop good friendships, good classes are there, the exposure is very nice. And then you have a Himalayan trek that is there. वो 7 दिन का होता है, 9 दिन का हो जाता है कभी कभी. तो that is the best part of it कि ये बहुत अच्छा रहता है. Then we start with the professional training. It is done at Indira Gandhi National Forest Academy. It is of 16.5 months. And it is a campus that is located in FRI, Forest Research Institute है देहरादून में, है ना. तो वहाँ पे लोकेटेड है. तो वहाँ पे जो 16.5 months की ट्रेनिंग होती है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द क्लासरूम. इन द क्लासरूम it is majorly, it is not a very classroom training like कि आपको पढ़ा रहे हैं particularly, पढ़ा नहीं रहे. It is more of an experience sharing platform where senior officers come and they share their experiences. There are certainly some classes that are dealing with the laws and other aspects as well, but it is more of an experience sharing platform. Then second most important fact is that are the tours. We have a very elaborate tours. We have 5 thematic tours and 1 introductory tour. Probably the Forest Service training has the longest tours, because every tour is of 21 days and there are 6 tours in total.
कहाँ कहाँ जाते हैं tour ये में? देश में हर जगह जा रहे होते हैं। पहला इंट्रोडक्टरी टूर तो क्योंकि हम एफआरआई में बेस्ड होते हैं देहरादून में, तो वो कहीं हिमाचल में ही जा रहे होते हैं या हिमालयन ट्रैक्स हो रहे होते हैं हमारे, वो ही होता है। तो वो एक जनरल अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, बॉन्डिंग अमंग्स द बैचमेट्स एंड थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के लिए कि होता क्या है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बस हम पढ़ के तो आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है वो समझने में समय लगता है। तो उसके बाद के जो टूर्स होते हैं, 5 थीमेटिक टूर्स होते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया बटे रहते हैं। लाइक नॉर्थ इंडिया टूर होता है हमारा, एक वो 21 डेज का होता है। ईस्टर्न इंडिया टूर होता है, सेंट्रल इंडिया टूर होता है, वेस्टर्न इंडिया टूर होता है, सदर्न इंडिया टूर होता है। ये टूर्स अलग अलग होते हैं। तो ये प्रॉपर जो टूर्स होते हैं वो 21 डेज के होते हैं। उसमें जहाँ जहाँ पे आपके ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सब होते हैं, वहाँ के एक टूर के सेटअप में कवर किए जाते हैं। बाय दैट यू लर्न हाउ अदर पीपल आर मैनेजिंग and how different interventions are being taken. So this is one aspect that is, I guess, it is the most learning aspect of the service, क्योंकि practical advices जितनी समझा सकते हैं ना, उतना हम क्लास में ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर थर्ड चीज़ होती है जो ट्रेनिंग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, वो ये कि we have attachments that are there. Attachments are in the parliament, attachments are with the media houses, attachment are with the NGOs. अटैचमेंट हमारा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है विद IMA। IMA में हमारी वेपन ट्रेनिंग होती है फॉर 21 डेज। वी आर गाइडेड एंड टोल्ड अबाउट एवरी वेपन, और उसका कैसे ओपन करना है, क्लोज करना है, क्लीनिंग करनी है, लोड करना, अनलोड करना, फायर करना है। तो वो सारा दे टीचर्स एंड दे इंश्योर कि जस्ट इन अ सिचुएशन यू आर देयर, यू आर एबल टू परफॉर्म बेटर एंड यू आर एबल टू लीड। And then we have horse training. वहाँ पे equestrian training होती है। Majority of the forest officers you'll find in the country are very good horse riders. उसका reason बस यही होता है कि they are trained for 21 days. Personally, I never liked it, but I am good at it now. तो उसका reason बस यही होता है कि they make you do that because you learn the instinct of an animal, and given a situation, you're in a better position to respond. So these are the broad aspects you do in the professional training, and the one aspect is jungle survival. That is a separate kind of training where you're left in the jungle for 7 days. Okay. And though certainly it is guided, but it is you're left there. So is it like, you know, जो sacred games or इस type का situation है कि you're fending for yourself, या man against wild वाले situation की तरह से? Right, उसी kind का होता है। आप you have to set up your own tent. You have to take your own mattress down from this hill to that hill. वहाँ तक लेके जाएंगे। 21 किलोमीटर्स के ट्रैक मॉर्निंग और इवनिंग में हो रहे होते हैं, जहाँ पे अपना सामान लेके आप जा रहे होते हैं। यू नीड टू कुक फॉर योर सेल्फ विदाउट, व्हेन यू डू नॉट हैव एनी यूटेंसिल्स, यू सपोज टू कुक इन दैट प्लास्टिक बैग्स में पानी भर के। कैसे आग जलाओगे, कैसे करोगे, एंड ऑल दिस मेडिकल रिक्वायरमेंट्स जो हो सकती हैं आपको इन फॉरेस्ट, लाइक how do you recognize different kind of trees and what are the medicinal properties that immediately, if you have a situation in hand, how would you use those? And combat skills we are told. And then it is very important, not certainly it is there in UP, तेराई एरियाज में certainly है, लेकिन यहाँ पे यूपी में उतना नहीं है। But southern areas में you must have seen all these movies coming over, na, where you need to where the forest officials, and camouflaging is the most important thing you are supposed to learn. And how do you not move, and how do you move when so that nobody else knows. So it is very delicate kind of training you learn for 7 days, and you feel कि खत्म हो किसी तरह, but that is an experience for a lifetime, because when you are there, कभी फंस जाओगे तो जीवन में काम आएगी। और डर खत्म हो जाता है उस समय, because when you wake up तो कहीं आपको महसूस हो रहा है कि कहीं से बगल से सांप चला गया पत्तियों से खड़खड़ा के, तो वो that kind of idea that scares you at that point. Now we feel confident telling about it, and given a situation, I am a better responder, because now snake conditions हर दिन कुछ ना कुछ होती हैं, लेकिन better responders, आप सो रहे हैं, आपके बगल से क्रैब निकल के चला जा रहा है। क्रैब इतने सारे थे। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में हमारी हुई थी जी, with the CRPF. This was the training आप कह रहे Training. जी जी। So it is 7 days of absolute fun, no sleep, but मतलब you are supposed to learn how to make मचान, क्योंकि जंगल रात में एक्टिव होता है। तो जंगल जब रात में एक्टिव हो जाएगा तो नीचे नहीं सो पाओगे, तो फिर ऊपर कैसे आप अपना मचान बनाओगे। तो ये एस्पेक्ट्स जो होते हैं ट्रेनिंग के, आई थिंक दैट आर द मोस्ट वैल्यूएबल एस्पेक्ट्स। वो सिखाते हैं, वो उस समय फन एलिमेंट लग रहा होता है, कभी कभी उसमें गुस्सा आ रहा होता है, बट वो सर्टेनली सिखा जाते हैं। अब नाउ व्हेन आई सी देम बैक, आई थिंक कि वो सिखाना चाहिए था। उसके बाद हमारी जब वी कम बैक आफ्टर, इट इज़ 20 months ओवर, so 4 months are left, because 2 years की होती है, तो 4 months जो left होते हैं, we come back to the state. Each officer training reports to his or her state, and state में they have on job training.
In UP, we have of 4 months. In certain states, it is, for example, in MP, it is, I guess, 9 months. It changes as per states, but in, for example, in UP, we have 1 month. In the first month, we have 1 week attachment with the DFO, the district forest officer, the district magistrate, the SP, and with the court, with the district judge, so that we develop a coherence and understand ki how things work in the district level. Otherwise, every service works in a bubble. So, and specifically forest service that that has less of a people to people interaction, वो क्या होगा कि अपना बबल में रहेंगे, आप जान ही नहीं पाएंगे how to interact and how to get your work done. तो उसलिए वो होता है. And rest 3 months is a range officer training. Range officer I would suggest, I would remind you कि जैसे कांतारा मूवी देखी है लोगों ने बहुत सारे ना, तो उसमें एक फॉरेस्ट ऑफिसर दिखाते हैं. That guy is the range officer. The range officer is the field level guy who is responsible for a particular, जैसे डिस्ट्रिक्ट में हम तहसील बांटते हैं, वैसे फॉरेस्ट में हम रेंजेस बांटते हैं. तो रेंज का एक रेंज ऑफिसर होता है, तो उसकी हमें ट्रेनिंग करा देते हैं, सो दैट वी टेंड टू नो द ग्राउंड लेवल कंसर्न्स एंड इश्यूज, बिकॉज आफ्टर ट्रेनिंग व्हेन वी जॉइन एज DFOs वी शुड नॉट बी ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट कि नीचे क्या चल रहा है. जी. सो आपने बताया कि रेंजेस में डिवाइडेड होते हैं. अगर आप थोड़ा बता सकें कि what are the various hierarchies of division, जैसे district divisions होते हैं for administrative services, right? आपके different railways में अलग type से divisions होते हैं, तो how is it divided? And because इसलिए और important सवाल है कि forests are contiguous, it's not limited कि सिर्फ एक district जो administrative district है उसमें एक forest होगा. So these are panning across different districts or different states on occasion. So how are the jurisdictions divided? This is a very important distinction, as you notice, because forests do not have boundaries, and certainly wildlife have absolutely no boundaries. So in that case only, this, for example, we have 75 districts in UP right now, but the forest divisions are 80, and it is for this reason because of the management perspective से वो आप divide कर देते हैं. Majority of the district forest officers are majority of the divisional forest officer, because we take as divisional forest officer. तो divisional forest officer is district forest officer in general, क्योंकि in general वही boundaries को हम mark कर लेते हैं, administrative boundaries को, और we collaborate कि बगल वाले से हमने collaborate कर दिया. But there are certain districts, for example लखीमपुर खीरी, तो वो इतना administratively बड़ा तो है ही, लेकिन wildlife और forest के reference में वो इतना diversified है कि उसमें आपको 2 बनाने पड़ेंगे, नॉर्थ खीरी और साउथ खीरी. तो वो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ साउथ खीरी और नॉर्थ खीरी होता है, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं कहते, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं. फिर एक वाइल्ड लाइफ का एस्पेक्ट अलग से आ जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं वाइल्ड लाइफ की बात करूं तो वाइल्ड लाइफ में अलग से 3-4 आपके प्रोटेक्टेड एरियाज या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क को मिला के एक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बैठता है, ऐसा बन जाता है. अच्छा. तो इसमें एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को ये लग रहा है कि पूरी कंट्री में देयर डिस्ट्रिक्ट्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होते हैं, देन रेलवेज में भी अलग टाइप के हैं, आपके इलेक्शंस के अलग टाइप से कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, तो हर यूज़ केस के लिए डिफरेंट तरीके से एंड डिफरेंट रैशनल के साथ डिविजन्स किए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स एंड ये सब बनाए गए हैं इसमें. और जैसे डिस्ट्रिक्ट से भी हम जैसे हम डिवीजन इज इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन इन इटसेल्फ माने, तो उसके नीचे जब हम काउंट करते हैं उसके हम सब डिविजन्स बात करते हैं. ओके, सो डिवीजन में सब डिविजन्स आता है. सब डिविजन्स हमने डिवीजन को 2-3 पार्ट में एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एज पर द सिचुएशन हमने उसको डिवाइड करते हैं. देन कम्स द रेंजेस, उसके नीचे रेंजेस आती हैं. ओके, तो उसके पार्ट्स होते हैं वो रेंज, वहाँ रेंज ऑफिसर है जो आप वहाँ पे रेंज ऑफिसर. तो हर सब डिवीजन में कम से कम 6 से 7 रेंजेस आ जाती हैं. एंड रेंज से भी जब हम नीचे जाते हैं तो वो बीट्स में डिवाइडेड होता है, क्योंकि फॉरेस्ट का प्रॉब्लम ये है कि फॉरेस्ट इज सर्टेनली नॉट एन एरिया दैट वी सी इन द मूवीज, दैट इज अ कंटिगुअस पैच कि हम जो मूवीज़ में देख रहे हैं या पर्टिकुलरली हम तराई एरियाज़ में देख रहे हैं या हम नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं. इन यूपी दैट इज़ अ प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल स्टेट, तो उसमें फॉरेस्ट पैचेस आर फार, बहुत दूर दूर पैचेस होते हैं, बट होते हैं बिकॉज फॉरेस्ट की लैंड होती है, पेड़ होते हैं, इतना सारा, और वाइल्ड लाइफ का कोई डोमेन नहीं होता, तो बहुत दूर दूर होता है. तो उसके लिए आपको मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कोहेरेंस के लिए ना आपको बीट्स में बांटना पड़ता है, सो दैट योर बीट गार्ड या जिसको हम फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं, वो फॉरेस्ट गार्ड बार बार जाके वहाँ पे देख पाए. जी, उनकी पर बीट आप फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी लगाते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर दिन वो उतना ही बड़ा होता है कि हर दिन वो बाइक से पूरा घूम सकें, देख सकें.
तो सबसे नीचे बीट आपका एक यूनिट हो गया जिसमें बीट गार्ड्स जो हैं आप कह रहे हैं दे टेक केयर ऑफ, देन रेंज ऑफिसर्स टेक केयर ऑफ रेंजेस, देन सब Sub-divisional officer is there for the subdivisions, जी, and and फिर then the डिवीजन. CFO. सो जब एक आईएफएस ऑफिसर, फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर सबसे पहले 2 साल की ट्रेनिंग के बाद पहुंचते हैं तो क्या उनको डेजिग्नेशन मिलता है इनिशियली? जब हम 2 साल की ट्रेनिंग के बाद पहुंचते हैं तो डायरेक्ट यूपी में तो डीएफओ का ही मिलता है. वी जी. जॉइन एज डीएफओज, जी. एंड बट इन अदर स्टेट दे continue they take charge as sub-divisional officers for a while, for 3-4 months, and then they step up, join the DFO. जी जी जी. Rank is same, but they take some time in the joining. तो क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इनिशियली, एक पिछले मान के चलिए 1 साल में क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्रॉम द ऑफिसर? इनिशियली फर्स्ट ईयर में आई वुड थिंक कि जो मैंने समझा फ्रॉम द डिपार्टमेंट आफ्टर इंटरेक्टिंग विद सो मेनी सीनियर्स एंड आफ्टर गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम द एकेडमी एज वेल, the main thing that they tell you is do not be extremely aggressive, so that you develop your better informal communication networks, because when in forest you need an informal communication network, very important. माफिया वाला जो कल्चर होता है ना, उसके लिए हमें मुखबिर चाहिए होता है. मुखबिर वाला कल्चर जो है फॉरेस्ट सर्विस में बहुत ज़्यादा है. वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो इफ़ यू बिकम एग्रेसिव इन द फर्स्ट पार्ट, in the first year of your service only, people do not come closer to you. Otherwise they feel कि let's come closer and tell this person something so that he'll take a better action. So this is the first thing. And the second thing, I think कि to understand how the system works, how you are supposed to do things that is required by the government, and how other people also communicate or respond with you. You need to have a very good system. I guess that is the main requirement, that you understand things in the first year. सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इन दिस सर्विस आप उस स्टेज में आ जाते हैं कि आप अपने नए कुछ इनिशिएटिव्स कर सकते हैं, या आपको अगर एग्रेसिवली फील्ड में परस्यू करना है तो यू आर एबल टू लोकेट द नेटवर्क्स एंड देन यू आर एबल टू टेक द एक्शन. ओके ओके. सो व्हाट इज अ डे लुकिंग लाइक फॉर अ फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर? मतलब रिगार्डलेस ऑफ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, दैट उस पर हम नहीं फोकस कर रहे हैं, बट जनरली क्या क्या चीज़ें होती हैं जो करनी ही होती हैं एज अ रूटीन एक्सरसाइज, एंड व्हाट आर थिंग्स दैट यू नो जनरली आर प्रिपेयर्ड फॉर कि अगर ये हो गया तो कुछ करते हैं? राइट. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जंगल वेक्स अप इन द नाइट, फॉरेस्ट ऑलवेज वेक्स अप इन द नाइट. इट इज़ दैट कुछ ना कुछ रात में ही होगा. दिन में तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उसका बस रिपरकशन हो रहा होगा कि इसका केस हो गया या इसका कुछ हो गया. तो फॉरेस्ट में आपको अपना जो नंबर है वो हमेशा ऑन रखना है. उसका रीज़न ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एट एवरी प्लेस डीएफओ इज सपोज टू गो, बिकॉज दे आर स्टाफ टू टेक केयर ऑफ इट, बट आपका मुखबिर आपको सूचना देगा. तो अ डे is in the night that you need to take up the phone just in case it comes. लेकिन by 5 AM in the morning आपको शिकायतें आ जाएंगी कि वहाँ पे पेड़ कट गया, वहाँ पे जानवर मर गया, वहाँ पे सब कुछ रात में ही होगा, दिन में कुछ नहीं होगा. तो मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट्स विद अटेंडिंग ऑल द कॉल्स, टेकिंग अप, जिनका कॉल मिस हो गया तो उनको कॉल बैक करके तुरंत यू अटेंड द कॉल्स, यू टेक द कॉल्स, यू गिव इट टू योर स्टेनो, टॉक टू ऑल द रेंज ऑफिसर्स जिनका इनका काम है, एंड दे रिपोर्ट यू बैक बाई 12 noon. एंड 10 AM यूजुअली इज़ द टाइम टू रीच द ऑफिस. 10 से 12 तो उसी में बीत जाता है, ये कुछ ना कुछ, बिकॉज फॉरेस्ट इज सम ऑफिस जहाँ पे लोगों के एक तो कुछ जेन्युइन काम फंस जाते हैं, और दूसरा लोग अनअवेयर होते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग व्हाट द फॉरेस्ट ऑफिस डज वो उनको नहीं पता होता, तो वो रैंडम काम पे आ जाते हैं. कुछ ऐसा हो जाता है कि जनरली हर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हर गवर्नमेंट स्कीम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि आप जब भी लैंड डिविजन करते हैं, जब भी रोड पेड़ कटता है तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है. तो वो 10 से 12 तो उसमें बीत जाता है. बीइंग अ फील्ड ऑफिसर आफ्टर दैट, इफ़ यू आर पोस्टेड इन अ डिविजन वेर देर इज सोशल फॉरेस्ट्री, थोड़ा डिवीजन हमारे यहाँ होता है, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री होता है, वाइल्ड लाइफ होता है, अलग अलग होता है. तो जैसे सोशल फॉरेस्ट्री लाइक पेड़ उगाने वाला या पेड़ काटने ये वाला ना, पेड़ नर्सरी में उगाओ, पेड़ लगाओ, वैसा वाला होता है. तो इन दैट यू कैन सिट इन द ऑफिस एंड विजिट द नर्सरीज और योर प्लांटेशन साइट्स और द साइट्स ऑफ द क्राइम इफ इट हैज़ हैपेंड इन द इवनिंग, एंड यू डू दैट and you return by 5:30 or something at your home, but your phone needs to be active. But if and meetings आ गई तो आप जाएंगे, but if you are in wildlife division, if you are posted, उस केस में आपका दिन अलग होता है. उस केस में आपका दिन अर्ली मॉर्निंग में बहुत सारे मल्टीपल कॉल्स आ जाते हैं, आप उनको सबको मैनेज करते हो, उसमें दोपहर के 2 बज जाते हैं तब तक, क्योंकि रात में कुछ ना कुछ हो गया होगा, उसका क्राइम रिपोर्टिंग होगी, उसके केसेस कटे होंगे, उसके कंपाउंडिंग, पूरे ऑफिस में बस यही चल रहा होता है. किसी ना किसी को ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी होती है, तो ये सब सॉल्व करते टाइम लग जाता है. देन यू डू द रेगुलर ऑफिस वर्क, एंड इन द प्रोटेक्टेड एरियाज या सेंचुरीज वाले सेटअप में
the divisional forest officer usually sits one day in the office, goes to the protected area in the other on the other day. तो जाते हैं वहाँ पे रात में गेस्ट हाउस में रुकते हैं सिर्फ ये देखने के लिए रात में काम कैसे होता है, और दूर भी होते हैं शहर से, तो वो देख के वापस आ जाना होता है अगले दिन. तो मेजॉरिटी ऑफ इसमें ही फील्ड विजिट और ऑफिस में ही बिजी रहता है. ओके, सो आपने मेंशन किया प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स, PAN. सो इंडिया में बहुत प्रकार के हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, सीक्रेट ग्रूव्स हैं. सो अगर आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए बता सकें कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, एंड ऑल्सो फ्रॉम द फैक्ट दैट क्योंकि जब कोई इंसान बोलता है कि मैं नेशनल पार्क घूम के आया, तो इज दैट लाइक वो कहाँ घूम के आए हैं, क्या वो अंदर तक जा पाए, नहीं जा पाए, ये सब थोड़ा अगर क्लियर कर पाएँ. राइट. अगर हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की हम बात करें, तो ये तो जैसे डेजिग्नेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड एरियाज एज पर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आर 4. एक आपका नेशनल पार्क होता है, एक वाइल्ड लाइफ, देन इट इज़ कंजर्वेशन रिजर्व, एंड फोर्थ इज कम्युनिटी रिजर्व. ये होते हैं हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं. द डिफरेंस बिटवीन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अ नेशनल पार्क इज कि नेशनल पार्क में यू हैव द बाउंड्रीज सेटल्ड. फॉर एग्जाम्पल यू गो टू कॉर्बेट नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क, इन सब में क्या होता है, बाउंड्रीज आर सेटल्ड, the rights of the people are settled. For example, some people might be living inside of the forest when it was declared, but then their rights are settled, they have been given a better place and the agreement has been done. So it is an absolute sacred area where there is no human intervention, only the management is done by the forest department, and आप वहाँ पे जा सकते हैं घूमने. उसका वो डिफाइंड होता है थोड़ा. तो इस केस में ये होता है कि whenever you visit a national park, हम जब नेशनल पार्क घूमते हैं तो उसका नेशनल पार्क भी डिवाइडेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली, कोर और उसकी पेरिफेरी में. हम जो घूमते हैं हम पेरिफेरी में घूमते हैं. दैट्स द पार्ट कि वो एज अ टूरिस्ट हमें बुरा भी लगता है क्योंकि हम बेटर वाइल्ड लाइफ नहीं देख पाते हैं, लेकिन एज अ मैनेजर्स हमें करना पड़ता है क्योंकि वाइल्ड लाइफ आर वेरी सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू नॉइज एंड एवरी सिंगल बिट. अगर जो है व्हीकल 100 मीटर दूर से भी आ रही होगी या 200 मीटर दूर से भी आ रही होगी तो वो वाइब्रेशन से पहचान जाएंगे, उस जगह से आना बंद कर देंगे. तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो अंदर के एरियाज में जाने ही नहीं देते. तो वो एक एस्पेक्ट है. अगर टूरिस्ट जा रहा है तो वो पेरीफेरी में ही जा रहा है, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंश्योर क्योंकि पेरीफेरी में भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ होती है, इतना कि उनको कुछ अच्छा विजिबिलिटी हो जाए, तो इसीलिए उनके पर्टिकुलर स्पॉट्स पे ही भेजते हैं जहाँ पे विजिबिलिटी हो सकती है. फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की अगर हम बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द एरियाज जिनकी बाउंड्री अभी सेटल्ड नहीं है. उनकी बाउंड्री सेटल नहीं है, उनके जो राइट्स हैं लोगों के अंदर वो भी सेटल नहीं है. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रीडोमिनेंटली द एरियाज जहाँ पे लोग भी रह रहे होते हैं, वाइल्ड लाइफ भी रह रही होती है. फॉर एग्जाम्पल द चंबल सेंचुरी ऑफ यूपी, वाइल्ड लाइफ भी है, सारा सब कुछ चल रहा है, वहाँ पे लोग भी बसे हुए हैं, तो वो भी वो राइट्स सेटल्ड नहीं हुए हैं. तो वो उस टाइप का माना जाता है जहाँ पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ की को एग्जिस्टेंस चलती है. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज़रूरी भी नहीं है कि राइट्स ऐसे सेटल करे जाएँ कि सारे लोगों को हम बाहर ही कर दें. वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे को एग्जिस्टेंस अच्छा हो सकता है. तो मतलब वाइल्ड लाइफ डिस्पर्स्ड है, बहुत कॉन्ग्रीगेटेड नहीं है कि एक ही जगह पे हो. फिर आते हैं कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व. तो कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व तो जैसे पर से यूपी में बहुत नहीं है, लेकिन जैसे हम सदर्न इंडिया में देखें तो वहाँ पे हमें बहुत देखने को मिलते हैं. कंजर्वेशन रिजर्व तो कोई भी ऐसी गवर्नमेंट लैंड होती है जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि ना वो वहाँ पे इतनी वाइल्ड लाइफ, या ऐसा नहीं है कि हम उसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएं. नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव सर्टन गुड नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी एंड नंबर्स एज वेल. बट इफ एन एरिया इज़ वेरी गुड विद रिस्पेक्ट टू द डाइवर्सिटी ऑफ ट्रीज और डाइवर्सिटी ऑफ, फॉर एग्जांपल आपकी बीज हो सकते हैं या आपके बटरफ्लाइज हो सकते हैं, उन एरियाज़ को जो गवर्नमेंट एरिया लैंड होती है उसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है एज कंजर्वेशन रिजर्व. और यही चीज़ अगर हम ऐसी लैंड मिले जहाँ पे प्राइवेट लैंड भी हो और गवर्नमेंट लैंड भी हो, दोनों चीज़ें हों, एक आपने पैच लिया उसमें गवर्नमेंट लैंड भी है प्राइवेट लैंड भी है, तो वो आपका कम्युनिटी रिजर्व हो जाता है. जी, आई थिंक काफ़ी मेरे को क्लियर हो गया चारों चीज़ों की भी डिस्टिंक्शन. एंड क्योंकि बहुत बार इंटरचेंजेबली लोग यूज़ कर लेते हैं कि मैं यहाँ घूम के आया कि वहाँ घूम के आया, राइट. सो आई थिंक अगर कहीं घूम के आ रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर टिकट लग रहा है, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स के आप नेशनल पार्क गए हैं, है ना. कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसी हैं जो डिफाइंड अगर हो गई हैं तो आप नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ऐसे जा सकते हैं. कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व यूजुअली पार्क के फॉर्म में डेवलप्ड होते हैं, तो ऐसा वो अलग से वाइल्ड लाइफ पर से नहीं होगा. और जैसे आपने एक मेंशन किया सेक्रेड ग्रूव्स. सेक्रेड ग्रूव्स इज अ कल्चरल थिंग.
इसमें क्या, इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट या ऐसा थिंग, वो ऐसा है कि कहीं पे जैसे आप पढ़ते हैं या आपने हर जगह देखा होगा ना, कहीं के लोग बहुत कनेक्टेड होते हैं विद फॉरेस्ट, वो वन देवी होती है, उनके वन देवता होते आई हैं, थिंक तो कुछ कुछ मेघालय जगह वगैरह में पे भी काफ़ी हाँ है बहुत, प्रचलित, हाँ। वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, साउथ सदर्न स्टेट्स में भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऐसी जगहों को वो डेजिग्नेट कर देते हैं सेक्रेड ग्रुप्स, तो वो बाय द कल्चरल आइडिया वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते, ख़राब नहीं करते। सो आपने बताया कि कोर एरियाज़ होते हैं, उसके बाद पेरिफेरल एरियाज़ होते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का डिस्टिंक्शन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया है। आपके एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ डीएफओ इन उन्नाव एज वेल एज चंबल, कोई ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि लोग घुस गए, चाहे तो गलती से घुस गए या हो सकता है कि फोर्सफुली घुस गए, फिर उस पर क्या कार्रवाई करी जाती है बेसिकली? राइट, परफेक्ट। तो इसमें क्या होता है हमारे, अगर हम चंबल की बात करें, बिकॉज उन्नाव में वी डू नॉट हैव अ सेंचुरी विद अस, बट इन द चंबल वी हैव 4 सेंचुरीज विद अस। चंबल सेंचुरी है, सूर सरोवर सेंचुरी, बोथ आर इन आगरा, देन देयर इज बर्ड पटना बर्ड सेंचुरी इन एटा डिस्ट्रिक्ट, एंड देन इज समन बर्ड सेंचुरी इन मैनपुरी। दीज आर द 4 सेंचुरीज दैट आई एम मैनेजिंग। इसमें क्या है कि इसमें अगर कभी कोई प्रोटेक्टेड एरिया में, मतलब इस एरिया में, कोर एरिया में आपके चला जाता है, तो यूजुअली द ओनर्स लाइज on the staff. It is for the reason because we do not erect barriers with respect to protected areas, with respect to core area and peripheral area. How would another person know? तो ये एक उनके ऊपर ओनस रहता है कि आप जब आपकी, क्योंकि कंटिन्यूस पेट्रोलिंग है, तो आप कैसे नहीं देख पा रहे हैं। तो यूजुअली वी डू नॉट टेक एक्शंस ऑन द टूरिस्ट इफ वी आर कंसिडरिंग द सेंचुरीज वेयर वी डू नॉट हैव वेरी क्लियरली वेल डिफाइंड और डिमार्केटेड कोर एंड पेरिफेरल एरियाज। But certainly I have seen in the cases जहाँ पे we have proper national parks and sanctuaries जहाँ पे properly defined होती हैं, because in UP and specifically the western part of the UP, we are still in the process of defining them in a right way, because they are just they have the initial notifications, the rights aren't settled, so we cannot have that kind of treatment with the outsiders, visitors who are coming, who accidentally step in the core area. But in the sanctuaries that are very settled, like in MP or in Uttarakhand or in the Tarai regions of UP, there if a tourist ventures into the core area, in that case the staff is responsible, the gypsy owner or the safari owner who is taking the person, that is responsible, because they are specifically trained to not enter those areas. And third, if they take something, because usually when the tourists go, there is their own lives, because then they'll come out of the gypsy. They'll come out of the gypsy and then they'll start shooting. And the wildlife gets very active. The moment they step their foot down, they know a human is there. They get very active. They risk their own lives, and accidentally, not knowingly, despite it is being written everywhere, they take something कि ये उठा लेते हैं, वो उठा लेते हैं, कोई हॉर्न दिख जाएगा, वो उठा लेते हैं। अगर इस केस में अगर उन्होंने कुछ डिस्टर्ब कर दिया है, तो उसी केस में, ये जो थर्ड केस बनता है, उसमें फिर हम जो टूरिस्ट है या उस ग्रुप है, उसके ऊपर फिर वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट्स, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव द केसेस, H2 केसेस आर देयर। क्या होते हैं H2 केसेस? H2 केसेस बेसिकली पुलिस में हम FIR करते हैं। उसी तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगर केसेस हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, तो हम उनको H2 केसेस में करके काट देते हैं, इफ दे आर ऑफ नॉट वेरी सीरियस नेचर। जस्ट इन केस दे आर ऑफ वेरी सीरियस नेचर, तब हम उसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व करके FIR करा देते हैं। तो ये H2 केसेस में किस टाइप की पनिशमेंट मिल सकती है जनरली? पनिशमेंट यूजुअली मॉनेटरी पनिशमेंट्स होती हैं, है ना, एंड दैट कैन गो अप टू लैक्स। एंड देन देयर आर पनिशमेंट्स लाइक जहाँ पे आपको प्रोहिबिट कर देते हैं कि आप यहाँ पे नहीं आएंगे, इतने दिन के लिए आप बार्ड हैं, इस टाइप के पनिशमेंट्स मिलते हैं। सो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत सतर्क रहना चाहिए कि कभी जाएं तो मिस एडवेंचर ना करें। मिस एडवेंचर ये ना करें, तो उससे क्या, वो बच जाएंगे, खुद के बचाव के लिए भी, और ये मजे मजे में जो चीज़ उठा लेते हैं वो पकड़ जाती है, एंड दैट इज़ अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। यू कैन नॉट इवन टेक अ स्टोन आउट ऑफ अ नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड स्पेसिफिकली इन अ नेशनल पार्क वेयर थिंग्स आर सेटल्ड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो फिर भी आप कह सकते हैं कि चलिए यहाँ हमने इसके घर से या इसकी ज़मीन से ले लिया था, यू कैन नॉट से इन दैट नेशनल पार्क। तो वैसे आपने बताया कि सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में राइट सेटल्ड होते हैं, आर देयर सम एक्सेप्शंस टू दैट? In wildlife sanctuaries, rights are supposed to be settled in a later course of time, but usually the notification, a sanctuary is declared in two parts. First, a sanctuary is declared, then we have then the district magistrate is given a time that they settle the rights of the individuals who are living in a certain boundary that is defined as a wildlife sanctuary, and then after the right compensation is given and everything is settled, they move out, and that area is demarcated and it is settled as a
sanctuary. And now when it is settled as a complete sanctuary, then all the activities and specifically the ecotourism and everything can take place. Conservation also in a better process. But in UP, it is a very recent process. Now, in the recent few years, government is actively taking up this aspect that the sanctuary should be settled. National parks are already settled, but sanctuary settle ही नहीं हुई हैं. तो यूपी में अभी सिर्फ 2 sanctuary settle कौन हुई सी हुई हैं. है? एक फर्स्ट आपका हस्तिनापुर सेंचुरी है जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स में थी, तो वो अभी ही बनाई गई, अभी सेटल करी. एंड इंसिडेंटली जस्ट 3 days बैक we got our sanctuary settled, the wildlife sanctuary, that is Sur Sarovar Bird Sanctuary. ये आगरा में लाई करती है and the notification was pending since 1990. 1990 में पहली बार हुआ था. उसके आगे का प्रोसेस होने में इतना समय लग गया. We were lucky enough कि the government forced us. We did that, and with all the administrative help and the forest department contribution, we were able to notify it right now. The government gave मतलब came out with the notification just 3 days back in the Gazette. व्हाट आर जनरली द रीजन जिसके साथ जैसे आप बता रहे हैं कि 1990 से पेंडिंग रहा है, क्या कैसे रीजन जनरली आते हैं इतना डिले का? Major reason is about people's emotional connect, first of all, because they are living in a certain area, they do not want to be moved out. And then is the compensation. Compensation is a real issue because the land rates change, and the act has also changed. The initial act was of 1894 and the new land act is of 2013, and the settlement is done by the district magistrate based on these laws, and the compensation difference is huge. They take a lot of time, there is a lot of litigation, and it is after ages that it gets settled. समझ रहा हूँ. काफ़ी आई थिंक इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है, प्रोसेसेस रहते हैं, बट आई थिंक एंड में अगर चीज़ें प्रोसेस के साथ हों, चाहे टाइम्स लगा करके हों, आई थिंक बिकॉज पीपल्स इमोशंस आर वेरी वेरी एसेंशियल हियर. So वो you cannot take people out from Yes. the place they are living in. Yes. ऐसे हटा नहीं सकते. धीरे धीरे with time, जैसे हमारी सेंचुरी भी थी 1990 में डिक्लेयर हुई है. अब धीरे धीरे with time the people who had been living in the forest that time, they had very huge emotional connect. Gradually their sons and daughters have moved outside in search of better opportunities. तो वो उनका भी एक बैलेंस हो जाता है कि हाँ ठीक है, they can manage that. अंडरस्टूड राइट. होलिस्टिकली अगर बोलें, क्योंकि आई सी वन कॉमन लिंक इज दैट पीपल यू कैन नॉट टेक आउट कम्प्लीटली फ्रॉम फॉरेस्ट एंड रिजर्व्स या any equation there because they're part of the ecosystem, so to say. Right. So as a forest services officer, how do you engage with the community and क्या क्या channels रहते हैं in different context? हो सकता है कहीं पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो वहाँ पे, या फिर अदरवाइज ऑल्सो जहाँ पे नहीं है ऐसे कोई प्रोटेक्टेड एरियाज, तो कैसे एंगेजमेंट इसमें रहता है? जो मेन हम कनेक्ट करते हैं, एक तो अगर आपका कोई भी फॉरेस्ट एरिया होता है तो फॉरेस्ट फ्रिंज एरियाज होता है जहाँ के लोग मेजरली इफेक्ट हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट के एक्ट्स एंड लॉज, क्योंकि दे आर द पीपल हु आर बियरिंग दिस ऑल्सो कि वी आर प्रोटेक्टिंग एनिमल्स आर कमिंग टू देयर प्लेसेस, है ना. तो दे आर हैविंग दिस एस्पेक्ट ऑल्सो कि इन्हीं के पास आते हैं, लेकिन इन्हीं को प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन ये यहाँ से हट भी नहीं सकते क्योंकि ये इनकी ज़मीन है. तो मेजरली जब इन लोगों को प्रॉब्लम होती है, व्हाट एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर वी डू, वी मेक इको डेवलपमेंट कमिटीज़, वी मेक JFMCs, जॉइंट फॉरेस्ट कमिटीज़ होती हैं मैनेजमेंट के लिए, वो बनाते हैं. इन सब में क्या होता है कि ये जो सारी कमिटीज़ बनती हैं ये फॉरेस्ट फ्रिंज एरियाज़ के लोगों के साथ ही बनती हैं, चाहे वो आपके नेशनल पार्क या सेंचुरीज़ के एरियाज़ हों, चाहे रिजर्व फॉरेस्ट आपका कोई बड़ा हो तो उसके आसपास के एरियाज़ हों, उसमें बना देते हैं. उससे जिससे उनका, क्योंकि हम लाइवलीहुड एक तरीके से छीन रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर नॉट अलाउिंग देम टू कलेक्ट वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, वी आर नॉट अलाउिंग देम टू टेक थिंग्स आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट बिकॉज इट इज़ एज पर द लॉ, बट it was their only means of livelihood. So what we do is that we train them. We have training centers in almost every district. We train them in different livelihood aspects so that they are dependent on they are constructively dependent on forest. जैसे वो बैम्बू होता है तो बैम्बू के प्रोडक्ट्स बनाना सीख जाते हैं और वो उसको मल्टीपल टाइम्स उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो वो उसको बेच लेते हैं. एक तो ये एस्पेक्ट होता है. दूसरा, बिकॉज देयर आर मेनी एप्रीहेंशंस. People who are living in the forest, they think कि अब ये तो हमारा था, ये इसमें ये फॉरेस्ट वाले क्यों परेशान कर रहे हैं, या उनको कभी कभी लगता है फॉरेस्ट वाले ज़्यादा परेशान कर रहे हैं. वो एक मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है when you declare a sanctuary where they declare an area as sanctuary where people are living. In that case we do छोटी छोटी वो वर्कशॉप्स करते हैं, गोष्ठी करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, जिससे लोग जाते हैं, बात करते हैं. चौपाल लगाते हैं हम लोग, वन चौपाल कहते हैं उसको, वो हर वीक लगाते हैं. सब लोग जा जाके अपना बैठते हैं, तो
उनके जो बेसिक डाउट आते हैं ना कि हम ये करेंगे तो इसमें दिक्कत तो नहीं है, दैट गेट्स सॉल्व। तो ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट होता है। जी, आई थिंक कम्युनिटी के ऊपर आई थिंक दो टाइप की कम्युनिटी हमने अभी तक डिस्कस किया है। एक है जो पीपल लिविंग इनसाइड दी रिजर्व्स, एक है से पीपल लाइक अस हु मे गो टू टूरिस्ट एज टूरिस्ट। एक थर्ड है जो थोड़ा आपत्तिजनक टाइप के लोग हैं, विच इज पोचर्स, एंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन पैन इंडिया, चाहे वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फौना से रिलेटेड हो, फ्लोरा से रिलेटेड हो। तो अगर बता सकें कि क्या कितनी बड़ी प्रॉब्लम है पोचिंग, and what are the interventions that the forest department takes, especially with the latest technology coming in play? Right. हम पोचिंग जब देखते हैं ना, तो व्हेन वी सी पोचिंग वी सी कि बहुत छोटा सा कोई चीज़ कि हमने लिखा कि 4 लोग जा रहे हैं, 10 कछुए लेके जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट वी सी, इट हैपन्स, इट कम्स इन द न्यूज़ ऑल्सो, बट पोचिंग इज एक्चुअली एन इंडस्ट्री, बिकॉज इट इज़ नॉट द वन दैट द पर्सन यू कैच, कि ये 4 लोग जो आपने गरीब से लोग होते हैं आपने उनको पकड़ा होता है, दे आर जस्ट द वर्कर्स, दे आर वर्किंग फॉर वेरी मेगर अमाउंट ऑफ मनी। शायद 500 रुपये पर दिन में उन्होंने कछुए पकड़ के दे दिए होंगे, क्योंकि उनके पास मीन्स नहीं होते लाइवलीहुड के। तो वो बहुत छोटा, तो ये पोचिंग जो प्रॉपर एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई है, उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत अवेयर रहता है विद रिस्पेक्ट टू दिस, कि एक जो मैंने आपको बताया था मुखबिर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। दूसरी बात ये कि जब भी ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं तो वी टेक टाइम, इन जनरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑलवेज अप्लाइज दिस स्ट्रैटेजी, अभी कुछ ही टाइम पहले भी हुआ था, वी टेक टाइम, वी डू नॉट एक्ट एट दैट पॉइंट, बिकॉज इफ वी एक्ट द पोचर्स, पूरा लाइन विल गेट एक्टिव, बिकॉज अगर यहाँ से कोई चीज़ पोच हो रही है फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया, सर्टेनली उसका कनेक्शन होगा कि एकदम राजस्थान से या साउथ इंडिया से कहीं से उनका कनेक्शन होगा, वो करते कहीं और हैं, ट्रेन से कहीं और चढ़ते हैं और जाते एकदम सीधे बंगाल और उस साइड जाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट इज़ इन द साउथ एशियन कंट्रीज़, तो वो सारा उस साइड जाता है। तो वो हम लोग जब भी कभी पता चलता है तो वी जस्ट एक्टिवेट आवर सिस्टम्स, एंड हमारा हमेशा से कोऑर्डिनेशन विद द रेलवेज एंड विद द रोडवेज बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि वही लोग आइज एंड ईयर्स की तरह एक्ट करते हैं, उनको देख के पता चल जाता है। वी कंडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स एज वेल विद देम, कि दे से कि अच्छा इसमें ये हो सकता है, तो वो साथ में रेड कर लेते हैं। तो हम पूरा शांत हो जाते हैं, देखते हैं, जब पूरा नेटवर्क उनका क्लैरिफाई हो जाता है तो हर नेट पॉइंट पे पकड़ लेते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पे पकड़ोगे आप उसके नेक्स्ट पॉइंट का झूठ बोल देते हैं वो, और दे आर वेरी एक्टिव, दे आर वेरी स्मार्ट, and the whole industry is very active. The people who will get caught, they won't tell you anything, even if you put them in the jail, क्योंकि उनकी फैमिली को इतना रिम्यूनरेटिव होता है तो वो कुछ बोलते ही नहीं, तो हम वो पूरा पकड़ते हैं। इस वजह से हम थोड़ा एक्टिव रहते हैं। इसमें वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और STF, उनके साथ मिलके हम पोचिंग को कंट्रोल करते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस पर से हम बात करें तो मेजरली ये होता है कि एक तो आजकल नाइट विजन ड्रोन्स आ गए, ये सारा काम रात में होता है ना, नथिंग हैपन्स इन द डे, इट इज़ जस्ट इन द नाइट 2 PM till 4 PM, उतने के बीच में ही सब कुछ होना है। तो अगर आप ऐसे टाइम पे किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में चले जाएं, उसकी पेट्रोलिंग या उसके मैनेजमेंट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस समय सुबह आपको सब परफेक्ट ही लगेगा। तो फिर उस समय ऐसा होता है कि वो जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, एक तो नाइट विजन ड्रोन्स आजकल आ चुके हैं, कैमरा ट्रैप्स हम लोग हर जगह लगा देते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे डाउटफुल होता है। कैमरा ट्रैप बहुत छोटे छोटे कैमराज होते हैं, वी पुट देम देयर, कि कोई पेड़ हुआ उसमें लगा दिया, तो वो रात में उसका पूरा जो इंफ्रारेड मोशंस होता है, मतलब सेंसर्स होते हैं उनके, वो सारा डिटेक्ट कर लेते हैं। तो अगर कोई भी ह्यूमन मूवमेंट होता है या उसकी फ़ोटो ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो ये हम लोग लगा के रखते हैं, और बाकी कोलैबोरेशन विद द अदर डिपार्टमेंट से होता है। आपके जो कार्यकाल में ऐसे कोई इंस्टेंसेस हुए जहाँ पे पोचर्स पकड़े गए हों चंबल से? पोचर्स पर से चंबल से नहीं पकड़े गए। मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट इज वेरी नोटोरियस फॉर दैट, पर्टिकुलरली व्हेन वी केम टू नो कि देयर इज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो वो कम्युनिटी बहेलिया है, उनका डिपेंडेंट लाइवलीहुड डिपेंडेंसी बहुत टाइम से इसी चीज़ पे रहा है। तो वो क्या करते हैं कि वो नेटवर्क कुछ और होता है, वो उन लोगों को, क्योंकि उनका वो नोमैडिक कम्युनिटी है, तो उनको सिखा के करवा लेते हैं। लेटली क्या हुआ है, जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट है, क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसा कुछ बहुत बड़ा पकड़ा नहीं गया, क्योंकि हमारी पेट्रोलिंग अब और ज़्यादा बेटर हो गई है, बिकॉज नाउ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन द पास्ट 2 years हैव इंक्रीज देयर स्टाफिंग, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फॉरेस्ट गार्ड्स बढ़ गए हैं, तो उनकी सबकी कुछ की दिन की ड्यूटी, कुछ की रात की ड्यूटी लगा देते हैं, तो उससे क्या है कि वो बच जाता है। मैं तो कहूँगी अच्छी बात है कि पकड़े नहीं गए, क्योंकि मतलब हो नहीं पा रहे मेजॉरिटी ऑफ टाइम, और अगर कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही छोटा होगा, नहीं तो ये पकड़ जाते, क्योंकि इन जनरल
और एक और एस्पेक्ट होता है जिसमें हम जैसे कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, तो एक तो लोगों को अंदाज़ा लगता है कि ये नहीं करना है। पहली बात तो लोगों को यही नहीं पता होता, लोग तो कछुए घर में रख लेते हैं, लोगों को ये पता ही नहीं कि नहीं रखना है। अगर ये पता होगा तभी तो नहीं रखेंगे। कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जनरली जो लोगों को लोग पाल लेते हैं बिकॉज पता नहीं होता है, बट जनरली दे आर नॉट अलाउड टू बी? राइट, जैसे टर्टल्स फर्स्टली कि टर्टल्स पाल लेते हैं, दूसरा लंगूर रख लेते हैं। अच्छा, वो लाल मुंह वाले को भगाने के लिए हाँ लंगूर रख लेंगे। हाँ। तो अगर उसकी कंप्लेन हो जाएगी तो उस पर एक्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो नहीं रख सकते। इसी टाइप की बहुत सारी एग्जॉटिक बर्ड्स आपने मार्केट में देखे होंगे। पीपल हैव दिस ऑल ब्लू, पिंक, येलो येलो, बहुत अच्छी अच्छी बर्ड्स लेके आते हैं, या एग्जॉटिक पेट्स ले आते हैं, मकाओ टाइप के एकदम बढ़िया से पेट्स होते हैं। एंड व्हेन यू गो टू पीपल्स प्लेसेस now I guess because of my profession, certainly when I never go to these kind of places, या किसी के पास होगा भी तो भी मुझे देखने में नहीं आया, शायद लोग मतलब अवेयर भी हो गए या उस जगह पे नहीं जाना हुआ। लेकिन बैक व्हेन आई वाज स्मॉल एज अ चाइल्ड तो बहुत अच्छा लगता था, इनके पास तो इतनी बड़ी सी ऐसी कलरफुल बर्ड है। नाउ आई रियलाइज वो एक्सोटिक पेट है, वो आप नहीं रख सकते। तो आप क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते हैं, उसकी एक्चुअली एक लिस्ट है जो कि गवर्नमेंट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी अपलोडेड है। व्हाट वी हैड बीन डूइंग इन आवर सेंचुरीज कि वी हैड बीन सर्कुलेटिंग दैट लिस्ट, कि लोगों को पता चले तो करेंगे, नहीं तो फिर तो अपने मन से कुछ भी रख लेते हैं। हम लोग भी अपने जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है विल पुट दैट लिंक इन सो दैट पीपल हु आर वाचिंग कैन गो एंड सी कि भाई गलती से भी नहीं राइट, हाँ, कि ये नहीं रखना है। नहीं तो कुछ मतलब, और इसमें जो जैसे आप कह रहे थे ना कि अगर जैसे पर्टिकुलरली हम मैनपुरी में ये जो बात कर रहे थे, या ऐसे कि यहाँ पे हो सकता है, जो आजकल पोचिंग इसलिए भी जो एरियाज में जो नेटवर्क हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, लेकिन इस एरिया में यूपी साइड में बहुत कम हो रहे हैं। उसका एक पर्टिकुलर रीज़न और है, क्योंकि जो वेस्टर्न इंडिया है वो बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है। तो वहाँ के जो लोग जो जिनके फैमिली इस चीज़ में इन्वॉल्व रही थी, नाउ देयर चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। वो ये सब छोड़ के, गांव छोड़ के शहर चले जाते, तो उनकी चीज़ को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। और बूढ़े या ऐसे लोग जो प्रिमिटिव तरीके से कर रहे होते हैं, तो वो वैसे ही पकड़ जाते हैं, तो वो आराम से खत्म होने लगता है। जी जी जी। आई थिंक एक एस्पेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बिकॉज कंजर्व आप तभी किसी चीज़ को करेंगे जब आपको पता है कि आपके पास कितने हैं। तो इट इज बेसिकली एक मैनेजमेट कॉन्सेप्ट है दैट व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। राइट। सो काउंटिंग ऑफ वेरियस स्पीशीज विद इन इंडिया, हम लोग, मेरे को याद है बचपन में 1411 was the number of tigers, for example. Right. And I think since then we have come a long way increasing the number of tigers across India. Most recently, the UP Forest Department conducted a census of these Saras crane. Right, Saras. So अगर बताइए कि how long was that exercise and कैसे करी जाती है? And I think those principles could be applied to other birds and animals also. इसमें सारस इज द स्टेट बर्ड ऑफ यूपी जी, एंड सारस इज वन बर्ड दैट इज वेरी ह्यूज एंड वेरी सोशल। ऐसा नहीं है कि वो शाई हो जाती है, बाकी बर्ड्स को काउंट करना बहुत टफ होता है। इनकी सारस की काउंटिंग स्ट्रैटेजी होती है, 2 दिन यूज करी जाती है, 2 दिन इन समर एंड 2 days in winters, and both the days in all both the meetings. First meeting in the morning it is 6 to 8 and in the evening it is 4 to 6. इस टाइम पे करते हैं। इस टाइम पे वी इन्वॉल्व एज मेनी NGOs एज पॉसिबल, एज मेनी एज सोशल ग्रुप्स एज पॉसिबल, और आपके व्हाट्सएप नंबर्स भी शेयर कर देते हैं कि आपको कहीं पे भी सारस मिले, क्योंकि सारस इज नॉट वन काइंड ऑफ बर्ड दैट विल स्टे पर्टिकुलरली इन अ वेरी अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट। वो आपको सारे फील्ड्स में सारी जगह मिल जाएगी, आपको मैनपुरी, इटावा, इन सब जगहों में तो नंबर्स ही इतने ज़्यादा हैं। तो इस तरह से लोग एक्टिव होते हैं, लोग उसकी GPS टैग लोकेशन फोटो भी भेज देते हैं। पीपल आर वेरी एक्टिव इन दैट, क्योंकि वो बड़ी चिड़िया भी होती है, वेरी इजी टू आइडेंटिफाइड, एंड पीपल समहाउ हैव अ वेरी ह्यूज इमोशनल कनेक्ट, क्योंकि सारस को अगर कुछ भी हो जाता है, आवर ऑफिस इज लाइक बजिंग विद कॉल्स कि सारस को ऐसे क्यों हो गया। तो उसमें जो सेंसस होती है उसमें विजुअल सेंसस होती है, आप आंखों से देखते हैं, आप फोटो ले लेते हैं, हमें भेज देते हैं। हमारा स्टाफ मॉर्निंग और इवनिंग में भी कर रहा होता है विद ऑल द NGOs, एंड वो सारे पॉकेट्स जो होते हैं उसको ग्रिड में डिवाइड कर देते हैं। ग्रिड में डिवाइड करने के सब अपने ग्रुप्स, 4-4 लोगों के ग्रुप्स अपने अपने ग्रिड में चले जाते हैं और सर्च कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे तो विजुअली हो जाते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है क्रेन्स का, और प्रजातियाँ होती हैं जो इधर से उधर चले जाएंगे, इसीलिए और बर्ड्स का सेंसस कर पाना बहुत टफ है। जैसे वी हैव सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी जो अभी नोटिफाई ही हुई है, उसमें 25,000 बर्ड्स आते हैं in the winters, and they are of around 160, 150 some species भी होते हैं, some migratory होते हैं, you have beautiful flamingos and everything,
बट उनका काउंट करना बहुत टफ। जैसे फ्लेमिंगोज तो तब भी चलो तो थोड़ा बड़े हो गए, जैसे ये छोटी छोटी डक्स आती हैं उनको आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो उसमें क्या है कि दे मूव अ लॉट और इनका नंबर वेरी कर जाता है, तो हम एक एस्टिमेटेड Estimate काउंट कर करते लेते हैं। होंगे। इसी तरह जैसे चंबल में भी है, वी हैव 356 वैरायटीज, लेकिन उनको काउंट करना प्रैक्टिकली इन 164 किलोमीटर्स रिवर स्ट्रेच इज इम्पॉसिबल बिकॉज दे आर वेरी फास्ट। जी जी जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक दिस एक्सरसाइज है, काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते होंगे। कितने लोग जनरली आपको लगता है इन्वॉल्व रहते हैं क्रॉस? पर सेंचुरी हम जैसे रेंजेस में बात करते हैं तो पर सेंचुरी हैव 4 to 5 रेंजेस। तो उन जो रेंज में होते हैं उसमें हर रेंज में 4 to 5 बीट्स होती हैं। एवरी बीट इन्वॉल्व्स अराउंड 20 to 30 इंडिविजुअल्स। ओके। हाँ, तो एंड सर्टेनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना इक्विप तो रहेगा नहीं विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स, एंड दिस इज वेयर द रोल ऑफ द villagers, the role of these people in the NGOs and the students come in. The people are very excited, NGOs are very excited, and the people in the मतलब जो students are very excited, और जो गांव वाले होते हैं they are very knowledgeable with respect to idea कि कहाँ है, वो तो तुरंत बता देते हैं कि उसके खेत में बैठा है। अच्छा। हाँ, तो वो और वो क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे होना होता है। लेकिन जैसे ये तो बर्ड्स हो गए, अगर हम जैसे एलिफेंट सेंसस करते हैं या टाइगर सेंसस करते हैं, ये दोनों सेंसस अलग तरीके से होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप पूरे एरिया को डिवाइड कर देते हैं, इन क्रिस क्रॉस ग्रिड डिवाइड कर देते हैं। उसमें आपके इसी तरह से आप लोकल पीपल एंड एवरीबडी आप सबको इन्वॉल्व करते हो, एनजीओज और सबको, और उसके बाद आप एक ग्रिड पे चलते हैं। आप इधर से इधर देखते हैं, आपकी विजुअल डिस्टेंस 30 मीटर तक। आपको अगर एनिमल दिखा तो ठीक है ना, एनिमल दिख गया तो ठीक, एनिमल नहीं दिखा तो आप क्या करते हैं, आप उसके स्कैट एनालिसिस करते हैं, फीकल मैटर उसका एनालिसिस करते हैं। आपको कहीं दिख जाएगा तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि उसका एरिया, बिकॉज दीज बिग एनिमल्स आर वेरी टेरिटोरियल एनिमल्स, ये चिड़ियों की तरह इधर से उधर मूव नहीं करेंगे। वो आपको पता है कि अगर एक है तो फिर एक ही है यहाँ पे, तो वो नोटिस हो जाता है। तीसरा, जैसे अगर टाइगर्स हैं तो वो तो पेड़ पे निशान भी मार्क करते हैं, अपने पूरे पंजों से मार्क करके रखते हैं, तो वो आपको टेरिटरी देखने को मिल जाएगी। जैसे इफ अ टेरिटरी इज लाइक दिस, आपको यहाँ के सारे पेड़ों में दिख जाएगा उसका निशान, क्योंकि उसने मार्क कर रखा है। तो यू कैन लोकेट द टेरिटरी, यू कैन सी द स्कैट, तो होगा तो एक यहाँ पे है ही, उस टाइप से हो जाता है। और फिर दिख जाए तो दिख ही जाता है। और इसी तरह एलिफेंट का होता है कि वो दिख जाता है। तो इनका करना आसान है। जैसे लेपर्ड इज़ अ वेरी टफ थिंग, आप उसका नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी एजाइल एंड वेरी गुड एट कैमोफ्लाज, आपको मिलेगा ही नहीं। आप उसमें एक्सपेक्टेशंस ही लगा पाते हैं, हम लोग अंदाज़ा ही लगा पाते हैं। जी जी, तो आई थिंक काफ़ी वो है, डाइवर्स प्रोसेसेस हैं, टेलर्ड मेड टू एवरी काइंड ऑफ स्पीशीज। इसीलिए सबका नहीं हो पाता। वी मेक अप्रोक्सीमेशन ऑफ एवरी अदर स्पीशी, कुछ का ही हम कर पाते हैं जी जी प्रॉपर्ली। सो राइट, आपने जो टाइम बिताया है एज डीएफओ उन्नाव एंड डीएफओ चंबल, आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा ये क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ रेयर स्पीशीज हैव यू योरसेल्फ सीन व्हाइल आप गए हों कभी फॉरेस्ट में? फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जो रेयर स्पीशी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है चंबल में, आई वुड से, इज़ अ टर्टल स्पीशी। चंबल में जैसे चंबल इज़ वेरी फेमस फॉर घड़ियाल, मगर, डॉल्फिन्स। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशी है, इट इज़ अ टर्टल। देयर आर 9 स्पीशीज ऑफ टर्टल फाउंड है। वन इज़ बाटागुर कछुगा, ठीक है। इट्स अ हार्ड शेल टर्टल। इसको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इसको शायद ढोर कहते हैं हिंदी में, एग्जैक्टली ढोर कहते हैं। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और एंडेमिक है, उसी जगह पे पाया जाता है, बस सिर्फ चंबल में पाया जाता है और चंबल में ही रहता है। तो वो एक इतनी रेयर स्पीशी है कि उसको बचाने के लिए हमारा मेजॉरिटी ऑफ स्टाफ यूज होता है, क्योंकि उसी की पोचिंग करने के मेन इंटेंशन होता है सबका कि इसका पोच करके इसको तुरंत हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाएगा। तो एक ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत आइडेंटिफाइड नहीं होती बट स्टिल अ वेरी स्पेशल स्पीशीज। दूसरा हमारा एक जो आपने शायद डिफरेंस देखा हो कभी घड़ियाल और मगर का, जी जी है बिल्कुल ना? बिल्कुल, हाँ। तो घड़ियाल वाज वन स्पीशी दैट वाज कंप्लीटली जीरो इन चंबल बैक इन 2007। एकदम कंप्लीट जीरो हो गया था। इट बिकेम अ नेशनल न्यूज और ये सब हुआ। उसके बाद नाउ द नंबर्स आर थ्राइविंग, 1600 से ऊपर है। जी जी, बट ये भी एक स्पीशी है जो कि देखने लायक होती है। फिर अगर मैं एक हाइना स्पीशीज है वहाँ पे। हाइना इज वन स्पीशीज दैट इज अबंडेंट इन चंबल। चंबल इज स्प्रॉलिंग विद वाइल्ड लाइफ। मेजॉरिटी ऑफ द रीजन क्योंकि वो जो एक टाइम था जिसमें वो डाकू वाला फेज था चंबल का, जब हम सुनते हैं चंबल के डाकू एंड एवरीथिंग, नाउ दैट फेज हैज गॉन। बट वो जगह इतने टाइम से अकेली खाली रह गई कि वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को, आपको हर तरह की वाइल्ड लाइफ, अगर आप रात में जाते हैं सब कुछ दिखता है वहाँ पे अभी भी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा ड्राइव कर रही है। तो आपने आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताया कि चंबल इज़ नोन फॉर दी डाकू एरिया है। तो जब आप स्टार्टिंग में पोस्टेड हुए थे तो आपके क्या
कंसेप्शंस थे, जाके आपको क्या दिखा वहाँ पे? पोस्ट होने से पहले सबसे पहले तो लोगों ने यही कहा था कि चंबल में पोस्टिंग ले क्यों ली. आई वॉज द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू एवर गो टू चंबल एंड सर्व देयर. जी एंड इट वॉज कंसिडर्ड कि चंबल तो कोई भी नहीं जाना चाहता. पीपल आर नॉट विलिंग टू टेक द पोस्टिंग ऑफ चंबल. आई टुक इट बाय माई चॉइस कि लेके देखते हैं ऐसा क्या ही हो जाएगा. तो एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि वहाँ पे जब गए, उन जगह को देखा. आज भी आप जाते हैं, यू कैन सी दी हाइड आउट्स जहाँ पे वो लोग छुपते थे. आपको गोलियों के निशान अभी भी दिख जाएंगे वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, और उसमें जहाँ पे डाकू छुपते थे. और ये सारी चीज़ें आज भी इंटैक्ट हैं बिकॉज पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस. एंड यू कैन सी ऑल दोज बीहर्ड रवाइन 30 फीट के ऊपर बीहर्ड होते हैं, गलियाँ बीच से निकल रही. मतलब ये रियलिटी होती है कि आप अकेले जाएंगे तो आप स्केर्ड हो जाएंगे, बट विद स्टाफ एंड एवरीथिंग. और नाउ ऑल्सो ये भी एक एस्पेक्ट है कि पीपल हैव मूव्ड आउट फ्रॉम इट. ये उनका मतलब प्रोफेशन अब डाकू वाला नहीं रह गया है, तो अब वो पीसफुल हो गया. जी जी जी. सो आपने एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग बताई थी कि कुछ तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रोल्स रहते हैं ऑफ ऑल दी फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर्स. कुछ चीज़ें आप ग्राउंड लेवल पे इनोवेशन भी कर सकते हैं. तो वाइल आई वाज डूइंग माय रिसर्च ऑन यू, फाउंड आउट दैट आपने सूर सरोवर महोत्सव ऑर्गेनाइज कराने में आपका बहुत योगदान रहा है. ऑल्सो वर्ल्ड स्पैरो डे के ऊपर आई थिंक पिछले कुछ सालों से काफ़ी सारे इवेंट्स करवाए हैं आगरा एंड नेबरिंग एरियाज़ में. सो थोड़ा बताइए कि क्या रैशनल रहा है, क्या क्या करवाया गया है? एक इसमें बहुत मेजर पार्ट होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इवेंट हमेशा कराते रहे हैं. When I joined the service, I realized there are many people, specifically when I joined as DFO Chambal back in Agra. People in Agra, I found, and now now as well, people are very active and they want to do something and they want to relate to an idea कि कैसे वो contribute करें, but they do not know. And certainly when they come to office, तो then there is no place that we discuss ये कि अब ये करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही मेगर सा हो जाता है. They do not feel connected. What I started in my first posting as well, because I feel that government machinery, forest department per se cannot save a resource that is so diversified and that is present everywhere. पेड़ हर जगह आपको मिल जाएंगे, जंगल आपको हर जगह मिल जाएगा, वाइल्ड लाइफ हर जगह चली जाएगी. तो और अगर हम अब एस्पेक्ट बात करें तो पोल्यूशन है, ये हम सारी चीज़ें कंट्रोल, एनी डिपार्टमेंट, बी इट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनी अदर डिपार्टमेंट, इवन इफ कोलैबोरेट, दे कैन नॉट डू इट अनलेस एंड अंटिल वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ टुगेदर. And while realizing this, as environmentalism as an aspect is also on rise and the consciousness is also on the rise, I started curating events like सूर सरोवर महोत्सव because आगरा में हमेशा ताज महोत्सव होता है. ताज महोत्सव के साथ हमने कोलैबोरेट किया था सूर सरोवर महोत्सव के लिए. तो हमने वहाँ से बसेस लगवाई थी कि लोग वहाँ से आते हैं तो यहाँ पे भी आके देखें. और सूर सरोवर महोत्सव एंटायरली वॉज डन बाय द NGOs एंड द कोलैबोरेटर्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हु वर डूइंग. इट वॉज एब्सोल्युटली नॉट फंडेड बाय द गवर्नमेंट. और वो अपने आप में कितना अच्छा इवेंट हो गया था, बिकॉज पीपल ऑलवेज वांटेड टू कम एंड नो कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाउ डू वी रिलेट टू इट. एंड व्हेन दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर टीम, दे आर वेरी गुड इन टेलिंग कि सेंसस में इस बार ऐसे करना चाहिए, इस बार ना हम लोग ये नया कर लेते हैं, आपकी कैंटीन इस तरीके से और इको फ्रेंडली बनाई जा सकती है, टूरिज्म में ये करिए, ये मत करिए. दे बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ योर नेटवर्क एंड आइडियाज़. क्योंकि हम गवर्नमेंट सेटअप में बैठ के सिर्फ अपने आइडियाज़ में बैठ के काम करें, मुझे लगता है वो बहुत लिमिटेड स्कोप हो जाता है. तो इसी तरह सूर सरोवर महोत्सव था तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ था. जैसे आप वर्ल्ड स्पैरो डे की बात करें, स्पैरो डे का भी यही था कि स्पैरोज आर गेटिंग एक्सटिंक्ट ऐसा लोग कहते हैं, बट इट इज़ नॉट. It is actually not. When you go and see in Chambal, colonies and colonies, thousands and thousands of sparrows are there. But हाँ certainly वो जो शहर के एरिया से वहाँ से कम हुई हैं. लेकिन उससे क्योंकि मेजरली हमारे ग्लास के घर होने लगे, खिड़कियाँ कम होने लगी जहाँ पे वो रहते थे, तो ये हमने अवेयरनेस करी थी कि आप बहुत सिंपल काम कर दिया, आप पानी रख लीजिए, घोंसला लगा दीजिए, बस उतना ही करिए. ज़्यादा आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके नहीं कर सकते. बट सर्टनली यू कैन डू थिंग्स बाय कनेक्टिंग ऑल दोज पीपल. वी कनेक्टेड लाइक वहाँ के जो साइकिलिस्ट ग्रुप थे, वहाँ के जो वर्कर्स ग्रुप थे, सारे एसोसिएशन थे, फीमेल एसोसिएशन थी, महिला समूह थे, एंड ऑल दी ऑफिसर्स and everybody, all the NGOs, like, and all the now people do get connected with Instagram, YouTube, है ना, and Facebook. वो उससे कनेक्ट नहीं होते कि आपने दूरदर्शन में क्या प्रसारित कर दिया, उनको उसमें नहीं समझ में आएगा उतनी जल्दी.
तो what we did, we collaborated with all the Instagrammers and YouTubers of Agra. So that वो भी आते हैं, वो अपने suggestions भी देते हैं, वो अपनी तरीके से लोगों को बताते हैं, people get more connected, and we were able, by that we were able to double the revenue of Sursarovar Bird Sanctuary, and many of the management aspect, the CSR activities started happening in Sursarovar because of that. Wow, I think that is quite a shift, right? Both in terms of revenue generation and sensitizing the people towards it. Now people, when I've come to now, they call me and say कि ये हमें करना है तो हमें कैसे करना है, but now the setup is already developed. They know कि they have to contact the range officer or subdivisional officer if I'm not there, and they collaborate and they do it. They do it. Right. जी. So I think sparrow is also an indicator species. So इसलिए was that the rationale to take that up? Yes, certainly that was a rationale, and sparrow is some species that is indicator as well as emotive also with respect to people. People get connected to it very easily. If I say them that you do it for lapwing, they'll not relate जी, it. correct, है ना? correct. Now when it is sarus or when it is या गौरैया, peacock जो हो उनके गया मन जैसे में, इंडिया के लिए, peacock, जी। वो तुरंत रिलेट कर जाते हैं, and they come in huge numbers. Right. आगरा में तो ये एक एक्चुअल में मूवमेंट हो गया था. Okay. तो people are still doing it. इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छा किया. They're था। doing it. जी. I think इसी टाइप से momentum बना रहे is our wishes to the people of Agra and the neighboring areas. मैम आपके बारे में काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया and discussed about forest services, about your interventions while being a forest services officer. Would want to know a little personal angle from of yours. So कुछ questions हैं जो मैं पूछूंगा आपसे. Right. Right, so आप as a kid कैसी थी? Right, what kind of a kid you were? बहुत जनरल मिडिल क्लास. अच्छा, नॉट मेकिंग एनी फस आउट ऑफ इट. जो पढ़ना वो पढ़ लिया जी. और बाकी जो शैतानी करनी वो कर ली. अच्छा जी. नॉट वेरी प्रॉब्लमेटिक किड, हाँ. बट जनरल गुड एकेडमिक्स वाला बच्चा. अच्छा. हाँ. What are the key values that you hold very dear to yourself? वन ऑफ द वैल्यूज आई होल्ड वेरी डियर टू माई सेल्फ इज पेशेंस. आई फील वो धैर्य जो शब्द है ना, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों में वही गायब हो रहा है, और उसकी वजह से सारी चीज़ें आपके पॉजिटिव इंटरवेंशन भी नेगेटिव हो जाते हैं. आपका एक पॉजिटिव काम भी आपको लोग नेगेटिवली रिफ्लेक्ट हो जाता है. आई गेस पेशेंस इज वन थिंग दैट इज मोर रिक्वायर्ड, दो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन माई स्पीच बिकॉज आई स्पीक वेरी फास्ट, बट येट पेशेंस इज वन थिंग दैट आई फील जी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Understood. Who is one personality maybe in history or in current domain जो आपको सबसे इंस्पिरेशनल लगता है? I will give a very childish answer, I guess, in that, because still my father is my hero, and it is just because of the fact I have never seen a person who has more patience than him. It certainly cannot be counted as if a person is extremely successful in a business or extremely like बहुत ही बड़े businessman या entrepreneur होंगे तभी हमारा patience value करता है. आपकी छोटे छोटे जीवन के aspects में ना, जब आपका पेशेंस होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, आई गेस दैट वैल्यूज एंड चेंज द लाइफ. जी. आई थिंक आपकी फैमिली में आपने बताया था कि योर यंगर ब्रदर इज एन IAS ऑफिसर. तो नाउ व्हेन यू शेयर नोट्स विद ईच अदर कि किस टाइप का काम कर रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट यू सी बिटवीन द टू सर्विसेज? The differences are predominantly of the domain. Right. We are a very domain specific service. We tend to focus on a very particular domain of environment and wildlife and forest. But when it comes to IAS, it is a very huge domain they serve in. They are in the managerial role of all these services, and specifically in the monitoring aspect they do. So I guess it is the domain specific thing that is different, and that's the exposure that they get. जी. That's very interesting. So as we come to the end of our podcast, we have a last section which is a rapid fire round. So I have a few set of questions. Right. जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप quickly within a few seconds you answer. Right. Let's get started. The first question is, what is that one superpower that you would like to have? Eating without getting fat. I think it's a wish for many people in the country. That's a superpower I want. आप क्या प्रेफर करते हैं, ईमेल, फोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज? Phone call. फोन कॉल्स. What is your favorite cuisine? Indian. Indian food. Anything specific within Indian? Specific rajma chawal. अच्छा. और otherwise Maggi in general favorite है. जी. The comfort food. आप movies, do you like watching movies? A lot. A lot? A lot. So which movie is your favorite all time? If one or two also चलेगा. अभी I guess that's a very old school answer again, but DDLJ was the favorite for a hopeless romantic. और कुछ आगे सीखा नहीं होता बच्चों ने उस टाइम पे. I guess that. And the last one is Unnao या Chambal? I would say Chambal was more interesting. Certainly, Unnao is very endearing and a new work, but it was more interesting.
Thank you so Thank much you so much. for being here. It was a great conversation. I think our viewers will draw a lot of inspiration, lot of interesting insights, and बहुत सारी चीज़ें demystify हुई about forest services as well as forest areas and protected area network in general. And I think before we come to a conclusion of the podcast, any last parting words that you have for our viewers? I would say that the more you get aware of yourself, take some time out. That is my one suggestion. I would say ये general जीवन का ज्ञान है. मुझे लगता है कि take some time out for yourself. Take 10 minutes out in your life. Sit with yourself. You'll realize कि what you want in life, what you are doing in life, what you can do in life. वो सारा जो चीज़ है, जो ज्ञान है, जो knowledge aspect है, वो आपके अंदर है. What we tend to do is we are very shy of sitting with ourselves alone, and that is the main thing that inhibits you in taking decisions. So I guess that is one part I would say ki, to do that. That's Thank you so much. Thank you. Thanks a lot for watching this episode of Sushasana. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो do not forget to like, share and comment. And for more such content, subscribe to the channel and hit the bell icon.